Very good evening, one and all present over here. I, Pooja, welcome all of you in our AIF State Webinar Series, wherein today we are going to have a very fruitful discussion on skill development. इससे पहले कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें, I'm very thankful to all the participants for joining us, and I'm very thankful to our sir who has engaged us in this platform, जिनकी वजह से हम इस platform पे एक दूसरे के साथ connect हुए हैं and we are able to impart the knowledge to each other, जो कि बहुत जरूरी है. हम चाहे कितने भी experienced educators, बहुत जरूरी हो जाता है that we keep on learning. Learning should never end, especially for us, the educators, उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत सारी स्टूडेंट्स को आगे इम्पार्ट एजुकेशन करनी है. I mean, हम अगर देखें तो it's so lively thing that we extend our knowledge to the students who are in good number of, right? डेली हम कितने बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं और उनको अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करते हैं, अपनी स्किल्स उनको सिखाते हैं, बट उससे पहले खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी हो जाता है. So that is why we are all have together over here. I'm very thankful once again to all the participants and all the guests. So my dear friends, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेखा मैम एंड प्रीति सारस्वत मैम. मैं आप सबके साथ इन दोनों का इंट्रोडक्शन जरूर करवाना चाहूंगी. हालांकि रेखा मैम एंड प्रीति मैम, both of them, they have taken many of the webinars with us on state webinar as well. We have already know a lot about them, but still, just doing a formality, I would like to introduce them with all of you. Rekha ma'am हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं. She is PGT English AIF resource person है, and she is founder of Tavisha, the Lighted Lab Global Foundation. We are very thankful to you, Rekha ma'am, कि आप हमारे साथ आज यहाँ जुड़े और हमारे एजुकेटर्स के लिए आपने इतना कुछ इकट्ठा किया जो कि आज बहुत फ्रूटफुल होने वाला है. Thank you so much for joining us. Thank you, ma'am. So next हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रीति मैम. प्रीति मैम is from Noida. She is also PGT English AIF resource person है. She's from Radiant Academy. Thank you so much, Preeti ma'am. We are very exuberant to have your presence over here. My pleasure, ma'am. Thanks so much. So my dear audience, हालांकि हम ये कोशिश करते हैं क्योंकि ये हमारा स्टेट वेबिनार है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इसे हिंदी लैंग्वेज में लेके चलें, because we are to take this ethic for conducting this webinar. But besides that, as हम थोड़े से, I'll just simply say, हम थोड़े से habitual है इंग्लिश को अडॉप्ट करना, हमें थोड़ा जल्दी आ जाता है. I don't know how come, because हम बच्चों के साथ बहुत ज्यादा engaged रहते हैं इंग्लिश में. But still we'll try our level best कि हम आज का webinar 80% हिंदी में और 20% just English में use करें. और उसका एक और motive है. It's nothing like that we cannot understand the English. The motive is कि हम अपना हिंदी कल्चर भी अपने साथ लेके चलें. तो आज की स्टेट वेबिनार सीरीज स्टार्ट करते हैं, लर्निंग सॉफ्ट स्किल्स फॉर एजुकेटर्स. तो रेखा मैम, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू. रेखा मैम, हमारे एजुकेटर्स जितने भी हैं आज यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑल ऑफ देम, जितने भी हमारे साथ प्रोफेशनल्स आज जुड़े हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं सब में. आई होप एवरीबडी इज एग्री विद मी. लेट मी हैव थम्स अप अगर मेरी सारी ऑडियंस ये कहती है कि हाँ हम में स्किल्स हैं, वी आर ऑल स्किलफुल. लेट्स हैव थम्स अप ऑल टुगेदर. That's great. That's great. Thank you so much, Archana ma'am, Sumedha ma'am, Saroj ma'am. Thank you so much. Of course, yes. So हम सब में बहुत सारे स्किल्स हैं, बट कुछ एक स्किल्स ऐसी होती हैं जिनको हमें रिजुवनेट करते रहना पड़ता है, और वो स्किल्स किसी बुक में नहीं मिलती है. वो स्किल हमें मिलती है हमारे इन्वायरमेंट से. That is called soft skills. So let's learn from Rekha ma'am, commencing with her. Rekha ma'am, I would really like to know from you, what do you think, according to you, आपके perspective के हिसाब से soft skill हम किस चीज को count करते हैं? Thank you, ma'am. I'll just first let me introduce. नमस्कार सबसे पहले सभी को. आज के सेशन का स्किल, जैसा पूछा मैम ने कहा, सॉफ्ट स्किल्स एंड अपलिफ्टमेंट फॉर टीचर, एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम जितनी बार सुने उतनी बार कुछ पुराना कुछ नया मिलता है.
आज भी कुछ ऐसा ही होगा, कुछ आपने सुन रखा होगा और कुछ आपको नया सुनने को मिलेगा। बहुत कुछ आपने सुन रखा होगा, कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया कहूंगी सर मैथ्यू सर का, फाउंडर AIEF, and मैम पूजा देसाई, who are continuously guiding us and enrich our knowledge and polish our skills. Thank you पूजा मैम। आप यहाँ हम सबके सपोर्ट के लिए साथ रहते हैं एक स्ट्रॉन्ग पिलर की जैसे, जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। जी हाँ, आज मैं रेखा राज, AIF रिसोर्स पर्सन एंड फाउंडर, ट्वेशा द लाइटेड लैम्प ग्लोबल फाउंडेशन, सॉफ्ट स्किल्स की बात करूंगी। सॉफ्ट स्किल्स जिन पे मैं फोकस करूंगी उसका मैं ऑलरेडी एक हिंट आपको दे चुकी हूँ। एनी गेसेस? I had already given a hint for a soft skill. Two I have mentioned already. Chat box is open, so anybody wants to send Two message. already I have mentioned in the beginning. Two soft skills. Can you please write it down? मैम ने बातों बातों में 2 सॉफ्ट स्किल के बारे में बता दिया. Let's guess who could hear it. Are we getting it now? Not yet. Come on, audience. As I had talked, like Pooja ma'am helps us, support us. As I have talked about a teamwork. So teamwork is also a skill. मैंने बताया confidence, हमें confidence. Yes ma'am. Thank you ma'am. Thank you Rishita. So पहली soft skill जिसकी मैंने बात करी थी वो है confidence. कम्युनिकेशन मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। देन आई हैड टॉक्ड अबाउट टीम वर्क। ये सारा मैं इंट्रोडक्शन में अपने साथ में जब मैं आपसे बात कर रही थी, आई हैड ऑलरेडी यूज्ड दीस वर्ड्स। ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हमारे अंदर होनी बहुत 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 जरूरी है। आपको पता है ये दोनों स्किल्स जो होती है लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको परिपक्व बनाती है। आपके शब्द जो चाहे आपको किसी ने सिखाए हो या आपने खुद ने कहीं से बोले हो, कहीं से सीख के बोले हो, इंटरनली बेसिक आपके नेचर में हो, वो एक रामबाण का इफेक्ट होता है उनके अंदर, एक रामबाण का काम करते हैं। डिटेल में कुछ समय बाद डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार पुनः मैं अपने सहयोगी स्पीकर मैम प्रीति सारस्वत की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। प्रीति मैम, Thank you, ma'am. Yeah. So, good evening, everyone. Thank you so much for introducing Rekha, ma'am. I'll proceed after you. You can proceed first. Yeah, thank you. So, if we are talking about Continue, skills, Rekha. skills की बात कर रहे हैं, तो वो हमारी लेबर स्किल्स है, वो हमारी पीपल स्किल्स है, सोशल स्किल्स जो हमें लोगों से कनेक्ट करती हैं। कुछ हमारे पास में हार्ड स्किल्स होती हैं जो हमारी बुकिश नॉलेज होती है, और कुछ हमारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो सॉफ्ट स्किल्स पर करेंगे। हमारे प्रयास, हमारा लेबर, हमारा लोगों को समझने का तरीका, सभी तो स्किल्स हैं। कुछ मेरे पास में स्किल्स हैं, कुछ आपके पास में होगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके पास में कौन सी स्किल्स हैं। लेट्स सी व्हाट स्किल्स यू हैव। We all have special skills as a human. Let me know what skills you have. You have to actually complete the word SKILL. S, which I don't show this. SKILL. Skill. Skill is a complete word. आपके अंदर कोई ना कोई स्किल ऐसी होगी जो इसको कंप्लीट करता है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ S. S से यानी स्पीक करना, S से यानी सहन करना, वो भी हमारे कौशल होता है। S से सुनना, K. Now the turn is of yours. आपकी टर्न है, आप K से उसको चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, इसको कंप्लीट एक्रोनिम को कंप्लीट कीजिए। K से व्हाट यू कैन राइट, I, कौन सी स्किल आपके पास में है, L से कौन सा स्किल आपके पास में है, and then again double L is there, so please complete this. L से yes, listen, to listen is a skill, nice. K, Sumedha ma'am has written L for listen, yes. K, do we have any skill in us? Okay, Asha ma'am has written no. Being kind, yes, we can take, yes. Being kind is also one of our soft skill, yes. L, listen, we have done. What could be another one? Knowledge, like we have the knowledge. What about I? Sumedha ma'am is saying knowledge. Asha ma'am is saying knowledge. Knowledge, okay, fine. If I connect it with knowledge, Sumedha I ma'am is saying I for someone, yes. yeah. Excellent. So I think we have completed it. Okay.
Now, if I only talk about the letter I, only letter I, can we tell minimum of 5 to 7 I using this word I, letter I, not word, sorry, letter I. Can we like tell what skills do we have as a teacher? We are all educators. Do we have any skills using the letter I? Kindly check, write it in the chat box if we have. Okay, Rishita ji is saying I for impart or Okay. indulge. Asha ji is saying initiative skills. Sumedha ma'am is saying I for involvement. That's Yes. it. We Rekha have. पूरा वो कैप का टेस्ट ले रहे हैं and we are passing. Yes, ma'am. So as teachers, we have this complete SKILL. Next slide. So skill, how we can complete this letter, this word skill. S is speak, K is to know. We have the things which we know, how we know, how we have gained. Know is also one of our skill. What to what extent we know the things. Then whatever we have, how we can impart. So I is for impart. Then L for listen, and then L for we can leave the impact. Okay, learn is also one of the skill. Listen, leave impact, learn. These are all, I have completed this SKILL for you. If I was talking about I for I says we can impart the knowledge, we can impress people, we can take the initiative. After taking the initiative, we can implement. This is also one of our skill. If we are implementing, then we have to inform. Whatever we are doing, we have to inform. Then we have to interpret. Suppose I have gained the knowledge, we have to interpret. I interpret is also one of the skill. How we interpret the things, how we imagine the things, how we, after imagining, how we are under pressure and how we improve ourselves is also one of the skills. And these all skills as an educator हम use करते हैं, तो हम लोग हमारे ही बच्चों में उसको implement करने के बाद में we can just bring changes, we can do wonders, हम miracles कर सकते हैं. आपने सबने लिखा, आपने सबने बोला. Next, again, I have a slide for you. Have you written any of the skill which is mentioned? You just write down, not SKILL, any of the skill which you feel is best in you. Best in you. What skill you feel like मेरे अंदर ये सबसे अच्छा है? Like I am the best in this. ये skill तो मेरी बहुत अच्छी है, कोई मुझसे challenge कर ही नहीं सकता, कोई compete कर ही नहीं सकता. Do you have any of such skill? Kindly write it down. Then I'll just check it out with you. Medha ma'am is saying listening skill. So Medha ma'am, your husband must be happy then. So Medha ma'am is having the listening skill that is the best in her. Okay, fine. Anyone wants to mention any of the skill? Any of the skill जिसमें आप सोचे कि मैं तो mastery है मेरी इसके अंदर. Just mention that skill and I'll just check it out. If it matches with my bocha which I have prepared, do you have these or not? Just write it down quickly. Okay, fine. I could see honesty. Anybody else writing? Any skill? Yeah. So I'll show you something. You just check it out whether it matches my chart or not. Being diligent, Saroj ma'am has written. I'll show you the chart. If someone has written with confidence, Pooja ma'am has written. Next slide. Yes, Rekha ma'am, it's okay. Continue. It's having some issues, ma'am. Just, yeah. So, honesty, teamwork, we have already discussed. Rules, follow karna. Writing skills, nobody wrote writing skills. Asha ma'am says she is good at communication. Personal appearance, as we can see, all of us actually try our level best. कि जब हम बैठे किसी के सामने, तो हमारे अंदर एक हमारा जो posture होना चाहिए, वो best होना चाहिए. हम जो दूसरे के सामने दिख रहे हैं, that should be the best. Good personal appearance. Staying on the job until it is finished. अब ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे को किसी काम छोड़ के चले गए. This is also one of the skills. Then ability to read and follow instruction. मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ पढ़ा, आपने सुना, नहीं सुना. Listening skills इसको compare कर सकते. So Medha ma'am has a good listening part, so she can relate with it. And then the last is communication skills. Communication skills will be talking in detail.
Fine, what happens if you don't have any of these skills? You have one skill, you have two skills, maybe. So what is the significance of these skills? Significance क्या है? अगर हमारे पास उनकी skills नहीं होती है, तो आपको पता है हमारा जो potential होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है. हमारा जो work होता है, जो हम करना चाहते हैं, it all goes in wrong. जैसे कि मैं सेशन स्टार्टिंग में मैंने आपको कन्विंस करने की कोशिश करी कि प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए. इफ आई वाज नॉट एबल टू कन्विंस यू, तो मेरा जो एफर्ट था शायद वो वेन हो जाता. यानी मैं कम्युनिकेट कर पा रही थी और आप सुन पा रहे थे, आपने उसको लिसन किया प्रॉपर्ली और आपने उसका आंसर दिया. That gave me the success to let you know कि सॉफ्ट स्किल्स आखिर है क्या. तो हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स है वो 85% हमारे सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है. And every one of you, I think you have the soft skills in you, what I was talking about. सच नहीं कह सकते because सच्चाई is in you. So that depends on you कि हम कितना सच्चा, कितने सच्चे और दूसरों के सामने कितने सच्चे. But many as soft skills what we are talking about. Next slide. Again, we'll take you what you have. Again, before this, you have to answer my question. Few questions are there on the screen. You have to write it down whether you have the skill, this you can cope up well or not. Yes or no, yes or no. एक साथ सारे आंसर देखिए हम don't send in the chat box. First one. Vikram, just give me a minute. I'm sorry to interrupt. Your audience, please, it's my request to everyone, kindly mute yourself. Rishita, the person with the name Rishita, please mute yourself. Yeah, thank you, Rika. Yeah. First question is positive attitude. क्या आप optimistic हैं? आपके साथ में कुछ भी हो जाता है, क्या आप उसको tackle करते हैं positive attitude से? Write down just yes or no. Will you generate good energy and goodwill, whatever comes? क्या आप दूसरे को positive feel करवा सकते हैं? Do you have good communication skills, both verbally and you can give a good message to the listener? The questions are there. Will you use your time on the job wisely? या सिर्फ टाइम पास करते हैं, काम पे जाते हैं and काम होए नहीं होए उससे कोई मतलब नहीं. I have to just complete the task and back to my home. Is it so? Do you know how to prioritize tasks and work on a number of different projects at once? Is it with you or you have actually a habit of procrastination? क्या आप काम को टालते चले जाते हैं? जैसा मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ, अभी रिसेंटली हुआ. हमें स्टार्टिंग ऑफ 3rd of March में बताया गया कि वी हैव अ फेयरवेल एंकरिंग. फाइन, फेयरवेल एंकरिंग मुझे लगा कि 30th को है एंड आई थॉट कि ठीक है मेरा ये टास्क हो जाए, then I'll complete this after letting my task which is on 8th. I'll complete it and then I'll come to the next. Then 13th again I was stuck somewhere. Then 31st is the program. What happened with me? I just started okay fine बाद में कर लूंगी, बाद में कर लूंगी, बाद में कर लूंगी, और वो जो बात था उसने कर दिया बर्बाद. And last year there was a stress. Now what? How to manage time? Next slide. How to manage time? And वो हमारे अंदर एक skill होती है कि working well under pressure. Now what? So are you able to handle the stress that accompanies deadlines and crisis? Will you be able to do your best work and come through a pinch? Okay fine, हो गया. Okay fine. अब तो हो गया, लेट तो हो ही चुका है, लेकिन क्या मैं अच्छा कर सकती हूँ? प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ हैबिट. क्या आप कर सकते हैं? उस सिचुएशन से बाहर रखने की कैपेसिटी रखते हैं? क्या आपके अंदर स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स है? टाइमली पहुंचना, टाइमली जो आप जिस मकसद से इंस्टीट्यूट में आते हैं, क्या आप उसको समय से कंप्लीट कर पाते हैं? आपके पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या आप उसका सोल्यूशन ला पाते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर यू? विल यू टेक द ओनरशिप? प्रॉब्लम तो मैंने क्रिएट कर दी क्योंकि मैंने काम को बहुत डिले किया. उसके बाद में बच्चे ने बोला मैम 20 से लेके 29 तक तो एग्जाम है, हमारी प्रैक्टिस कब होगी? हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है. एंड आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि 20 से 29 9 दिन है, बहुत लंबा समय है. नाउ व्हाट? सो आर यू फेसिंग सच सिचुएशंस? हाउ यू कम अप विद दोस ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप कैसे बाहर आते हैं? इफ आई टॉक अबाउट मी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें वो स्टेप बैक करके उसका प्रैक्टिस को करना पड़ा. डू यू हैव दैट स्किल? आपके अंदर वो स्किल है? आई वुड रियली लव इफ यू हैव कम अक्रॉस एनी ऑफ सच सिचुएशन, यू कैन जस्ट ओपन अप एंड स्पीक टू अस. दैट विल एक्चुअली गिव अस अ सॉल्यूशन कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं भी इस तरीके के सिचुएशन से
गुजरी हूँ और मैंने उस चीज को इस तरीके से अच्छे से हैंडल किया है. So many questions are there. You might have scored yes, no, yes, no, yes, no. Is there anybody who has scored yes all 12? Is there anyone? Yes for all 12. All the 12 questions which were on the screen, is there anybody who has written yes, 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 yes for all? Like handling, yes, handling stress, I am one, I'm the master. Yes, I'll be doing my best work even if the work is endless. I can work the best. Is there someone? I really don't think so, Rekha ma'am, there would be any such person, because all of us we are having, हम सब में बहुत सारी shortcomings होती हैं, और ये जो आपने प्रोक्रेस्टिनेशन की बात कही, मुझे नहीं लगता यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, राइट, वो इस प्रॉब्लम से बचे हुए हैं. आई डोंट थिंक सो. हम सब में ये कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती ही है. दैट्स वेरी. How do we come over? We are going to learn from you today. I am going to learn. Yeah, how did I actually came to the solution? I had already told. मैंने क्या किया, जो वो 20 से 29 मेरा जो बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम था, बच्चों को पता था नाउ ऑनलाइन एग्जाम है. Everybody knows कि ऑनलाइन एग्जाम is not so much stressful. So what I did from my side, I decided a day. I called the children. They were with the practice. I gave the time in the evening. Clear? So solution तो हमें ही लाना पड़ेगा. मॉर्निंग ओके फाइन, आई जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटेड द वर्क, मैंने काम समय पे नहीं किया, तो मुझे उसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा. सॉल्यूशन स्ट्रेस लेने से नहीं होता है, सॉल्यूशन निकालने से होता है. घर पे बुलाया, प्रैक्टिस करवाया, सॉल्यूशन मिल गया. नाउ वी आर प्रिपेयर्ड. आज मुझे कॉन्फिडेंस है कि आज मैंने एक स्कूल में प्रैक्टिस ले ली, मेरे बच्चे 30th को बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं. सो एज एन एजुकेटर मुझे पॉजिटिव होना पड़ेगा. अगर मैं वहां पे हो जाती यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं बच्चों के साथ में, अभी तक तो स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी है, सो शायद मैं क्वेश्चन में सो भी नहीं पाती. सो आई गॉट द सॉल्यूशन. So this is, we have to learn how to come up to the solution rather than, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट स्लाइड, उसके लिए क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ेगा. अगर मुझे बच्चों ने बोला नहीं होता कि मैम 20 से लेकर 29 का तो टाइम टेबल आ चुका है, बिकॉज आई वाज प्री ऑक्यूपाइड विद माय वर्क. प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने प्रायोरिटी एक काम को दे दी, दूसरे को दे दी, तीसरे को मैं भूल गई. प्रायोरिटाइज करने का मतलब मुझे उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ओके फाइन, कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, मुझे थोड़ा थोड़ा समय निकाल के मेरे काम को करना पड़ेगा. फाइन. अगर वो कम्युनिकेशन नहीं होता, मुझ तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, तो शायद मैं उसको और भी डिले कर चुकी होती. लेकिन क्योंकि वो टाइमली मुझ तक कम्युनिकेट हो गया, मैंने टाइमली कम्युनिकेट कर दिया, मैंने पर्सपेक्टिव से चेक किया. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एम्पैथी. आई वाज वरीड, सो आई शुड हैव शाउटेड ऑन द चिल्ड्रन. बताया क्यों नहीं पहले तुम लोगों ने, टाइम से काम हो जाता. आई वुड हैव शाउटेड, और मैं करती शायद. लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने उनके पर्सपेक्टिव से देखा कि उनकी भी गलती नहीं है. उन्हें भी नहीं पता था कि सडनली एक सर्कुलर आ जाके 20 से लेकर 29 तक हमारे फाइनल एग्जाम डिक्लेयर कर दिए जाएंगे क्लास 11. फाइन. अब नाउ बिकॉज उनके ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर प्रेशर है, सो हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है. मैंने उनके नजरिए से देखा, उन्होंने मेरे नजरिए से देखा, एंड द सोल्यूशन वाज इन आवर हैंड्स. सो वी हैव टू लुक इनटू द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर. दूसरे के शूज में भी पैर रख के हमें अपना चेक करना पड़ता है, दूसरे की नजरिए से भी देखना पड़ता है. टेम्पर लूज करने से नहीं होता है, सॉल्यूशन से सब कुछ होता है. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो हमारी होती है, कम्युनिकेशन स्किल एंड बीइंग एम्पैथेटिक. एम्पैथेटिक होंगे, कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा. कॉन्फिडेंस, जी हाँ, कॉन्फिडेंस की जब मैं बात करती हूँ तो मेरे पास में 3 वर्ड्स होते हैं. आई शेल, आई कैन एंड आई विल. ये 3 एक्चुअली आई हैड लर्न फ्रॉम माय प्रिंसिपल वेयर आई वर्क. I can, I shall and I will. So this I will converted my confidence into the will part. जो मेरे लड़खड़ा रहे थे पैर, वो सपोर्ट मेरे पास में आया. ठीक है. और उस सपोर्ट की वजह से जो हमें शायद आपसे भी मिलता है, पूजा मैम, मैथ्यू सर एंड जो टीम है, उन सबसे वो जो सपोर्ट मिलता है ना, वो सपोर्ट ही शायद हमें स्ट्रॉन्ग, टॉल. लेकिन उसके लिए प्लीज वी हैव टू टॉक, वी हैव टू कम्युनिकेट व्हाट इज विद इन अस. बोलेंगे नहीं, प्रॉब्लम आ जाएगी, खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, यू विल नेवर गेट इट. You have to share your problems so that you can reach up to the solution. हो सकता है वो प्रॉब्लम किसी और ने भी फेस की हो और वो आपको सॉल्यूशन दे सकता है. Do you remember that? होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, एक मूवी थी 3 Idiots, if you all remember. If you remember, there was a movie 3 Idiots. उसमें तमिल में उसने कोई डायलॉग बोला था. Being teachers, I'll just try and sharing this.
कम्युनिकेशन की भी बात चल रही है. That incident when that person was speaking, हम लोग थिएटर में बैठे होंगे and we all laugh without thinking कि इसका क्या डायलॉग था. Just blindly हमने एक दूसरे को देखा and we started laughing. तमिल का डायलॉग था. Look at the what we are actually, what to which extent we can go. तमिल का डायलॉग था. We don't know what the sentence was, but we all were speaking. We all were laughing because everybody was laughing. तो क्या ये सही है? ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो कर लेना. सिचुएशन मेरे साथ आई है, चीजें मेरे साथ आई हैं, ऑब्जर्व मैंने करी है. हाउ आई कैन फॉलो द पाथ ऑफ, मेरा पाथ है, मुझे खुद को सिलेक्ट करना होगा. मुझे खुद के हिसाब से, मेरे समय के हिसाब से, मेरे माइंडसेट के हिसाब से उसको सही करना होगा. किसी और की चीजों को मैं कैसे फॉलो कर सकती हूँ? ये चीजें हमें हमारे स्टूडेंट्स को भी सिखानी है, हमारे बच्चों को भी सिखानी है, हमारी फैमिली को भी सिखानी है. और ये सबसे बड़ा स्किल है हमारा, अगर हम डेवलप कर पाए. हम सुन रहे हैं, we were listening to that dialogue and without even giving a second thought, we laughed. Why? Because everyone else was doing it. So is it good to do? We have to ask these questions. Many more are in role, many other skills are there, which I think Preeti ma'am will discuss. What I have communicated is the skills, the way you speak, and the way you impart knowledge. And after that, when you are there, you do mistakes. There is a pencil which we use for writing, but God has given eraser. Eraser is to identify our problems. And this eraser, when we can correct it, then why not do it? So this is to be used. Mistakes are about, we being humans, we have to do the mistakes. It is our janmasiddh adhikar. But उसको सही करना भी हमारी ड्यूटी है. So nothing, you can read it, nothing a dedicated on time employee can't handle. ऐसा कुछ नहीं है जो एक dedicated, I'll not say only employee, एक human अगर आप dedicated है, so you can also handle the situations if you have the will. So I shall, I can, and I will is a takeaway from my side. Now I'll over to you, Preeti ma'am. You can conclude. Just I'll say you have to motivate yourself and kindly lead others. Creativity plays a big role. आपके अंदर जो creative lady inside hidden है, इंसान जो hidden है, उस creative इंसान को बाहर निकालिए, solutions अपने आप मिलेंगे, skills अपने आप सबके अंदर है. पॉलिश करना है, बीच में थोड़ा पॉलिश करते रहिए, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कीजिए, और हम एज अ लीडर सभी को मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे हम भी खुश, आप भी खुश. ओवर टू यू प्रीति मैम. थैंक यू. Very well explained, Rekha ma'am. Thank you so much for proceeding. So I would like to request Pooja ma'am to share my screens, my PPT first, so that I proceed. Hope so. Formally, very good evening to everyone. Myself, Preeti Saraswat. Pooja ma'am already introduced me. And अभी मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ नयापन दूं. बहुत सारी सॉफ्ट, आपने स्पेसिफिकली पहले समझ लिया कि एक्चुअली सॉफ्ट स्किल क्या है. मैम ने बहुत अच्छे से समझाया, सारी स्किल्स हमारे सामने आई. देखते हैं हम इसमें ऐसा कुछ और नयापन क्या ला सकते हैं जो टीचर्स के लिए बेनिफिशियल हो. आज मेरे पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्किल है जिसका मेरा अपना पर्सनल मानना है कि उसके अंतर्गत सारी कुछ सॉफ्ट स्किल समाहित होती हैं. तो उसको जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रही हूँ, हार्डली 1 मिनट. आप उसके बाद गेस करिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आफ्टर दैट वीडियो. तो जस्ट वॉच कंसंट्रेटली, आप बहुत ध्यान से देखिएगा. सो मैम इज गोइंग टू प्ले. रिमेंबर दैट इज आल्सो अ स्किल ऑफ आवर्स. Yes. Is it audible? अगर ऑडियो ऑडिबल होगा तो थम्स अप देंगे. It's not audible. It's not audible, Pooja ma'am. Make a plan. Now it's audible. Action. And check the result. As an example, you'll see how these ants use the 4 steps. The first step is to clearly define the problem. To understand what the goal is,
and what is keeping you from reaching that goal. The ants want to move this cookie into their anthill, but it's too big to fit. The second step is to make a plan for solving the problem. This step includes talking about information and ideas that will be helpful. The ants decide to break the cookie into small pieces and move them into their anthill. The third step is to put the plan into action. They break up the cookie and move the pieces. And the fourth step is to check the result. It looks like it's working. Sometimes the plan does not solve the problem. For example, this piece is still too big to fit. But that's okay. The 4 steps may need to be done more than once. It's an ongoing process until a solution is found. Define the problem. Make a plan. Put the plan into action and check the result. Hope you all watched the video. अब आप मैम नेक्स्ट स्लाइड. और हमारी ऑडियंस लिखेगी कि ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल जो आपने इस वीडियो से समझी, जो आपको लग रहा है कि वी आर गोइंग टू प्रोसीड. बहुत सिंपल है वैसे तो, बट आपके मेरे कंफर्मेशन के लिए कि आप तक वो बात पहुंची है कि नहीं जो मैं कन्वे करना चाहती थी. प्लीज राइट इन चैट बॉक्स कि मैं किस स्किल की बात कर रही थी. आई गोइंग टू चेक इन द चैट बॉक्स. टीम वर्क. ओके, दीपिका मैम ने बोला टीम वर्क. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट, समवन एल्स. दीपिका मैम का ही मैसेज आया अभी. टीम वर्क, वेरी गुड कंसेप्शन. आपने बहुत अच्छे से सोच के उस पॉइंट को रखा है. इट रियली वर्क फॉर मी. मैं आगे इसके बारे में बात करूंगी. एनीबडी एल्स? सुमिता मैम, रेखा मैम, सरोज मैम ने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट. वेरी वेल डन. रियली आई एग्री. आगे बढ़ते हैं. सरोज मैम, दीपिका मैम, रेखा मैम ने कहा प्रॉब्लम. ओके, प्रॉब्लम आई उनके सामने. प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, वेरी गुड. लेट्स सी. अंजुला मैम ने बोला कम्युनिकेशन. ओके, स्किल. तो द सेम वे हमारे पास देखिए बहुत सारी चीजें. डिसीजन मेकिंग, सुमिता मैम ने बोला डिसीजन मेकिंग. वेरी वेल डन. ग्रेट. सो आई थिंक साइमल्टेनियसली टीचर्स लिख रहे हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं. ये क्या है? उनका अपना तर्क है, उनकी समझ है. उन्होंने वीडियो देख के जो समझ उनको लगा कि ये चीज लेट कर रही है, उन्होंने चीज लिखा. और एक्चुअली मैं अब आपको बताऊं, देखिए आपके सामने कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं. पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल. दिस ऑल कम्स टू बी इंटरपर्सनल स्किल्स. आप सब लोगों ने कुछ कुछ स्किल्स रखी. और देखिए एक वीडियो के अंदर आपको इतनी सारी स्किल्स देखने को मिली. आपने इतनी सारी स्किल से कनेक्ट किया. So actually this is what a problem solving skill. मेरा क्या मानना है कि हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती है. हर इंसान के अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी है. बहुत किसी के पास काम ज्यादा डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स हैं. बट व्हाट आई फील, जब किसी भी इंसान के सामने ना प्रॉब्लम आती है तो यस, एक्चुअली द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जब उसके साथ प्रॉब्लम आती है तो एक्चुअल जो फेज है ना वो सामने आ जाता है. तो व्हाट वी एक्चुअली टीचर्स नीड कि हमें इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बहुत एनहेंस करना है. और इसमें आप देख रहे हैं सारी स्किल्स आ गई इसके अंदर. आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को सिर्फ डेवलप करके ही हम किस तरह से आगे जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स है उसमें महारत हासिल कर सकते हैं. तो अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात करें, देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही नोन पिक्चर दिख रही है थर्स्टी क्रो की. उसने किस तरह से स्टोन डाले, पानी ऊपर आया, पानी पी लिया, तर्क लगाया उसने अपना. उसे किसी ने नहीं सिखाया. प्रॉब्लम आई, उसने सॉल्व किया. ऐसे ही हमारे साथ है. देखिए हमारे पास टाइम पर टैक्सी नहीं मिली तो ओला ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. दोस्तों साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाए, डिस्कनेक्शन इशू, तो भाई एफबी ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. जॉब मिलने में प्रॉब्लम है तो Naukri.com जैसी बहुत सी साइट्स हैं, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. लेकिन लाइफ की प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आएगी तो हम किसके पास जाएं, कैसे इनहेंस करें, ये हमारा तर्क है. तो कुछ लोग उसे बहुत स्मार्टली सॉल्व कर जाते हैं और कुछ लोग अवॉइड करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और वहीं वो लैक कर जाते हैं. तो सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट.
तो जब भी हम प्रॉब्लम स्किल की बात करते हैं तो हम उस एबिलिटी की बात कर रहे हैं जो हमें अपने कार्य होने वाली कठिन परिस्थितियों को संभालने की समझ प्रदान करती है। दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारे प्रोफेशनल और सोशल रिलेशनशिप में होने वाले आपसी द्वंद्व को हमारे अंदर जब रेक्टिफाई करती है और हमें डिसीजन मेकिंग लेने की हमारी जो प्रतिक्रिया है उसको इनबिल्ड करती है और इनहेंस करती है। नाउ वी बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। नेक्स्ट स्लाइड मैम। सो अब हमने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है और हमें क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझना और उसके ऊपर काम करना। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट डज प्रॉब्लम सॉल्विंग लुक लाइक? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है और कभी कभी कैसे बाधा बन जाती है। सपोज हमें जैसे टेम्पर लूज करना, हमें गुस्सा है, टीचर है, बच्चों के ऊपर आ सकता है, कभी कोलिग्स के ऊपर आ सकता है। तो अगर हमें किसी पर गुस्सा आया तो सबसे पहले हम क्या करें, हम कैसे समझे कि प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई करें। हमें गुस्सा आया ये प्रॉब्लम नहीं है, आइडेंटिफाई करें कि हमें गुस्सा क्यों आया। आपने डिफाइन किया, आपने समझा, आपको समझ में आया कि अच्छा गुस्सा इस वजह से हुआ, उस वजह को आप एक्सप्लोर करेंगे। जब आपको वजह पता चलेगी और आपको लगेगा यस मैंने एक्शन किया, then this is not enough, ये काम यही खत्म नहीं हुआ, आप इसके ऊपर वर्क करेंगे और ऐसी परिस्थिति में आप जाके फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर वो चीज सही हो गई तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए। अगर आप स्टक हुए तो रीट्राई। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आंट्स लेकर आई चींटियों को एक अपने जो होल है उसमें दाना डालना था, एक्शन बनाया, टीम वर्क किया, सारी स्किल्स उन्होंने डेवलप की, लेकिन एक जगह आके वो स्टक हो गई। तो क्या हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, फिर से करेंगे। इसीलिए उस वीडियो में सो व्हाट, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हमें प्रॉब्लम टाइम टू टाइम सॉल्व है। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन हम करते क्या है, हम उस प्रॉब्लम पे स्टक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये पता नहीं क्यों ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ ही आती है, और हम कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो एक्चुअली दिस इज साइकोलॉजिकल इशू, दिस कॉल्ड अ रूट कॉज एनालिसिस। हमें अपनी जीवन में किसी भी प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल लाइफ में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम रूट कॉज एनालिसिस के थ्रू इसको इंप्रूव कर सकते हैं। और हम जब ये चीज इंप्रूव करेंगे तो साइमल्टेनियसली हमारी बाकी स्किल्स भी एनहांस होती हैं। और जिसका पूरा मेथड मैंने आपको बताया ही कि किस तरह से डिफाइन करना है, एक्सप्लोर करना है और चीजों को आगे बढ़ना है। बट हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हम सबसे पहले एक इजी ऑप्शन ले लेते हैं, ब्लेम अदर्स। हाँ, हमसे गलती हुई, ये प्रॉब्लम है, बट हमारी गलती नहीं थी, हमारी सारी प्रॉब्लम आई, हमने अगर कुछ चीज सफल नहीं हो पाए हम उस चीज में, ये इसकी गलती है, नहीं इनकी वजह से मुझे गुस्सा आया, नहीं इसने ठीक से नहीं किया इसलिए प्रोग्राम अच्छा नहीं हो पाया, व्हाटएवर। तो भाई ये तो एक्सक्यूजेस हो गए। तो आपका डिसीजन मेकिंग इस पे बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा, लेकिन आपको पहले प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। कंपैरेटिवली आप लोगों को ब्लेम करें, तो आप लोगों को ब्लेम ना करें और खुद प्रॉब्लम सॉल्वर बने। उसके लिए मेरे पास वैसे तो कोई ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ एक आपके पास, मेरे पास कुछ गिव अवे है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। आप देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ क्वालिटीज रखूंगी प्रॉब्लम सॉल्वर के अंदर होती हैं, और आप देखेंगे कि उसके अंदर आपकी कुछ कुछ स्किल्स भी इनबिल्ट होती हैं। तो सबसे पहली आपकी क्वालिटी है कि सबसे पहले जब भी आप रीजन ले, आपके सामने प्रॉब्लम आए, तो आप जो आपकी फीलिंग्स और लॉजिक है उनमें सामंजस्य बिठाए कि आप राइट फीलिंग, आप दिल की सुने या दिमाग की, हमेशा आप कंफ्यूज होते हैं। तो उसके लिए आपके पास मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आपको पेशेंस और इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्लाइड। आपने जैसे आप बहुत रोजमर्रा का काम करते हैं, एग्जाम्पल पे हम जाते हैं, बैंक जाते हैं हम लोग, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ उससे रिलेटेड कि आपने जैसे आपकी मोटी चीज, आप काउंटिंग कर रहे हैं, पेज की काउंटिंग कर रहे हैं, और आप गलत, बहुत सिंपल सी चीज है, इसके लिए स्किल की जरूरत नहीं है, बट है कि आप पेशेंस लूज कर गए, और आपकी तो मैं आई एम गुड इन दैट, तो जल्दी हो जाएगा। सो ऐसी स्थिति में जब भी आप फंस जाए, इट्स अ सिंपल थिंग, कोई भी चीज हो, तो आपको सामंजस्य से बिठाना है कि आप अपने आप को थोड़ा काम करें, थोड़ा टाइम दें, टेक अ डीप ब्रीथ एंड रीस्टार्ट, वो काम हो जाएगा। अब छोटी छोटी प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज कि जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आए तो आप उसको प्रॉब्लम की तरह मत लीजिए, आप देखिए कि इट्स अ न्यू चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अपॉर्चुनिटी कैसे कि आप के सामने आपकी स्किल दिखाने का मौका मिल रहा है, आप कितने पेशेंस हैं, आपके अंदर कितना टीम वर्क है,
आप कितने काम है, आप किस तरह का डिसीजन ले सकते हैं, ये सारी चीजें जब आप एक प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह से काम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये 2-3 चीजें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए अब थर्ड वन ये है कि ये दोनों चीज कैसे काम करेंगी। रेगुलरली इंप्रूव्स कम्युनिकेशन। मैम ने आप अभी रेखा आपने बहुत अच्छे सब बताया कि कम्युनिकेशन क्या है, अपनी बात को पहुंचाना। बट क्या होता है कि कभी कभी हमारी इंटेंशन नहीं होती, हमने किसको शब्द बोले, शब्दों का शायद चयन ठीक नहीं हुआ, लोगों ने उसे दूसरी तरह से ले लिया। अब वो बच्चे भी हो सकते हैं, आपने तो उसको मोटिवेट करने के लिए बोला कि नहीं इस बार ठीक नहीं है, आप और अच्छा करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसे लगा कि यार सर ने तो अप्रिशिएट ही नहीं किया। आपका मोटिव था कि उसको मोटिवेट ही करना, आप बच्चे को मोटिवेट करना चाह रहे थे, या आपने कुलीग से बोला कि नहीं नहीं ये ज्यादा बेटर नहीं है, आई थिंक जो मैंने पहले किया तो बेटर है, बट कहीं ना कहीं आप उसे क्वालिटी दिखाना चाह रहे थे। सो यही बातें होती है कि जब हमें पता लग गया कि सामने वाले को नहीं ठीक लगा, तो हम आगे उस प्रॉब्लम, हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि हमने तो अच्छी इंटेंशन से बोला, उसको नहीं समझ में आया, तो आप इसके ऊपर भी वर्क करेंगे, क्योंकि आपको ब्लेम नहीं करना है ना दूसरों को, आपको खुद काम करना है। तो आप आगे से शब्दों के चयन के ऊपर ध्यान देंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप ईगो असाइड। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज, ये जरूरी नहीं है कि आप किससे मदद ले रहे हैं या आप किससे डिस्कशन कर रहे हैं, या आपने अगर कोई डिसीजन गलत ले लिया तो उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, गलतियां सबसे होती है। देखा मैम ने बेस्ट एग्जांपल दिया, पेंसिल इरेजर, आपने प्रॉब्लम ली, सामने आया, गलती हो गई, सो ओके, आपने इरेज किया, आगे बढ़िए। तो आप ईगोस पे अगर स्टक हो जाएंगे तो आप आगे काम नहीं कर सकते, आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर कभी नहीं बनेंगे। सो आपके पास, हमारे पास बोनस टिप क्या है कि आप जब भी स्टक हो जाएं तो आप ऐसे लोगों से मदद लें जो रिलायबल हो और नॉलेजेबल हो, यानी कि रिसोर्सफुल पर्सन हो। ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने गए, साइट पे गए कि जिसने जितनी बातें बोली और आपने मान लिया और आप बस ट्राई करते जा रहे हैं, ट्राई, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो स्मार्टली काम करना बहुत जरूरी है। आप बीइंग अ टीचर, क्योंकि हम जब छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे टीचर ने ऐसा कर दिया। यस, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट मैं अपनी तरफ से ही देना चाहूंगी, मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बहुत स्टार्टिंग में 1 ईयर बैक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अपनी डॉटर के लिए, और बहुत अच्छे से, शी इज अ वेरी गुड ट्रेन डांसर, और हम बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करते थे, सब कुछ बहुत हमने परफेक्ट टेक्निक का ट्राई किया, बट वो बूस्टअप नहीं हो पाया, चैनल प्रमोट नहीं हो पाया। मैंने कंसल्ट किया, ऑनलाइन भी कंसल्ट किया, बहुत सारी चीजें हमने ली, लेकिन वर्क नहीं कर पाई। सडनली मैंने एक वेबिनार देखा मैथ्यू सर का, उसमें लिखा था हाउ टू build your YouTube channel, how to motivate your YouTube channel। मैंने तुरंत उस वेबिनार को अटेंड किया, इट वाज अ पेड वेबिनार, एंड रियली मतलब मैं यहाँ वहां भाग रही थी, सब इतनी लॉजिक और इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल बातें बताई, और मुझे लगा कि अरे मैंने इन चीजों के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया, एंड इट इम्प्रूव्स। सो ये बहुत जरूरी है बीइंग एज टीचर और रिसोर्सफुल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि हम टीचर्स अगर राय ले रहे हैं तो ऐसे लोगों से राय ले जो, या उस जगह से जाके हम लोग ज्ञान ले जो कि रिलायबल हो और रिसोर्सफुल हो, ना कि यहाँ वहां से हम लोग कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लें और बांट दें। नेक्स्ट स्लाइड। encourage creativity and new ideas, ये बहुत जरूरी है। सी, अब सपोज कि आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, काफी बार हम पेन ना लेने की वजह से उसे अवॉइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे इंग्लिश इंटरनेशनल डे आप मनाना चाहते हैं, बीइंग इंग्लिश टीचर, या कोई भी आप हिंदी मतलब वीक मनाना चाहते हैं, जैसे अब हिंदी इंग्लिश के डेज होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ्स का, साइंस का। आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन आप सोच रहे हैं नहीं यार क्लासेस भी हैं, सिलेबस भी कराना है, कौन इतना पेन लेगा और कैसे हो पाएगा, ये छोड़ देते हैं। नो, आपको, आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे, आप पुलिस को तो करेंगे, लेकिन आपको भी मोटिवेट रहना है, क्योंकि जब आप इनिशिएटिव लेंगे तब आपके स्टूडेंट इनिशिएटिव लेंगे, आपके कुलीग्स आपसे इंस्पायर होंगे, और ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंटली काम आएगी जो कभी किसी को दिखेगी नहीं, ये कोई चीज सिखाई नहीं जाएगी, आपका इनिशिएटिव है। फाइन। अब उसके लिए बोनस टिप क्या है कि यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। इमोशंस कैसे, काफी बार हमारे सामने एक परिस्थिति आती है कि हम मान रहे हैं हमें तर्क और दिल दोनों से काम लेना है, लेकिन हमें बियॉन्ड द इमोशन नहीं जाना है। सपोज मान लीजिए आपने इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया, कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे कि अरे ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया, इसमें ये कमियां रह गई, तो कोई कहेगा नहीं नहीं बहुत अच्छा था, किसी ने कहा कि नहीं नहीं यू कैन ट्राई नेक्स्ट। सो आप या तो डिमोटिव होके छोड़ देंगे, अब से नहीं करूंगा, या आप इतने खुश हो गए कि आप अपनी गलतियां भी भूल गए, आपने उसके ऊपर काम नहीं किया। सो दोनों ही चीज बहुत बुरी है। हम टीचर्स को बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। सो बैलेंस रहिए, मोटिवेट रहिए, दूसरों को मोटिवेट करिए और आगे बढ़ते रहिए, इनकरेज करिए। नेक्स्ट स्लाइड।
सो एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी ये कोट कर ही दिया कि आपने अगर कोई भी आपने जो भी कैंप स्टार्ट किया, इनिशिएटिव किया, और अगर कोई भी आपको मोटिवेट कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, नॉट, आपको देखना है कि आपको क्या करना है। फाइन, तो आपको अपने तर्क तक से सोचना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे बढ़ना है। ऐसा मैं एग्जाम्पल ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, इट हैपेंड समटाइम, हमारे साथ भी होता रहता है। सो नेक्स्ट टू द इम्पोर्टेंट वन, able to find the right cause for the problem। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हमें सही जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी है, जो कि हमारी प्रॉब्लम असेसमेंट, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, जो हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने राइट जड़ को नहीं पकड़ा, और हम कितनी भी मेहनत करें, कितने भी तर्क लगाए, रिसोर्सल चीजों के पास जाए, लेकिन हमें तो राइट प्रॉब्लम पकड़ में ही नहीं आई ना, सही हमारी जो जिसके ऊपर में काम करना है वो चीज हमें समझ में नहीं आई। सो बहुत जरूरी है कि हम लाइफ में जो भी डिसीजन लें, हम उस पर सोच समझ के काम करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक टिप बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए पहले टिप ये है कि आपके पास लाइफ में बहुत सारी चीजें आएंगी, गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस आएंगे, बट आपको डिसीजन अपने प्रोग्रेस के हिसाब से लेना है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया ना कि आपने कुछ इनिशिएटिव लिया, आपने पहली बार स्कूल में कुछ प्रोग्राम कराया, कुछ लोग आपको अच्छा बोलेंगे, कुछ आपको बुरा बोलेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, आपको उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसको रेक्टिफाई करना है प्रॉब्लम को, और उसके बाद आगे बढ़ना है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। लाइफ में काफी बार हम लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, तो हमें देखना है कि हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए जो पीछे मैंने सारी चीजें बताई, ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव करेंगी। क्यों? उसमें आपका ईगोस चले जाएंगे, आप तर्क से दिल और दिमाग दोनों से काम लेंगे। जब आप ये सारी चीजें करते हैं ना, उसके बाद डिसीजन मेकिंग की सॉफ्ट स्किल अपने आप इनबिल्ट होती है, एंड योर ऑल द प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व्ड। सो दिस इज कॉल्ड, और इन सब चीजों से अगर हम इसी चीज का निचोड़ निकालें ना, तो हमारे सामने एक 3 बेसिक कॉन्सेप्ट सामने आ जाते हैं। और वो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम उसके लिए बात करेंगे, लेकिन पहले आप, बहुत अच्छी कोट है जो आपको इन सारी चीजों कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। वी कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम, एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को उस जरिए से नहीं सॉल्व कर सकते विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। अर्थात हम अपनी समस्याओं को उस सोच के साथ हल नहीं कर सकते जिस सोच के साथ हमने उन्हें बनाया था। हमें अपने आप को समय देना होगा, उस परिस्थिति को समझना होगा, और लाइफ के अन्य विकल्पों का सहारा लेकर हमें एक नई सोच को जागरूक करना है, और जिसके वजह से हम उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। सो हम एक ही धर्रे पे चलकर अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। हमारी सारी सॉफ्ट स्किल हमारे उस डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करती हैं, और उसका मास्टरमाइंड है प्रॉब्लम सॉल्वर। एंड अगर हम, जो मैं 3 निचोड़ की बात कर रही थी, तो ये अगर हम जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई, उनसे कम निचोड़ निकालें, तो 3 चीज हमारे सामने आती है कि सबसे पहले आपने देखा, आपने इंफॉर्मेशन निकाली कि आपकी प्रॉब्लम की वजह, आपने उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गैदर की, उसके ऊपर जब आपने काम किया, तो वो निकल के आ जाता है मेकिंग डिसीजंस, कि आप सही डिसीजन लेने के कैपेबल है, आपने सही डिसीजन लिया, और वो सारी चीजें अपने आप अल्टीमेटली सही होती जाती हैं। बिफोर प्रोसीडिंग नेक्स्ट स्लाइड, मैं एक चीज आप लोग ऑडियंस से चाहती हूँ कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ है, तो आप थम्स अप देंगे, क्योंकि इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजों के बाद मैं आपको एक सिचुएशन में डालने जा रही हूँ। अब आप खुद अपने आप को रियलाइज करेंगे कि अगर आप इस प्रॉब्लम में आ गए तो आप क्या करेंगे। लेकिन उसके लिए ये सॉफ्ट स्किल जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये आपका समझना बहुत जरूरी है। अगर कुछ एम्बिगिटी है तो आप मुझे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन अपना लिख दीजिए। अगर एवरीथिंग इज फाइन, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप थम्स अप देंगे। यू कैन चेक रेखा मैम इन दैट मैसेजेस। ओके, तो मेरे पास पहली स्लाइड आ गई। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ। आपके पास पहला सिचुएशन है कि देखिए, सपोज आप एक क्लास में टॉपिक पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे ने अनरिलेटेड टॉपिक पे क्वेश्चन कर लिया, आप क्या डिसीजन लेंगे? एट अ मोमेंट आपके पास सोचने का टाइम नहीं है। पहला ऑप्शन है, आप सब लोगों को अपना राइट ऑप्शन चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, एबीसीडी है, आपको अपना राइट ऑप्शन चैट बॉक्स में लिखना है। पहला है कि आप उसको अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछने देंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप उसे अलाउ नहीं करेंगे अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कि आप उसको इनडिसिप्लिन
में कंसीडर करेंगे और पनिश करेंगे, या फिर आप उससे बोलेंगे कि यू विल, मैं इसका आंसर आफ्टर द क्लास दूंगा। आप अपने आंसर्स लिख के रखिए, उसके बाद मैं आपको स्कोर बताऊंगी कि आप एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्वर है कि नहीं। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं ए आंसर आ रहा है, वेरी गुड। मैं राइट आंसर में बताती हूँ आपको, इस ए आंसर इसका रॉन्ग है मैम, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। डी, दीपिका मैम एब्सोल्युटली करेक्ट। पूजा मैम नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो राइट आंसर आएगा। सी, राइट आंसर इज यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। मैं इसका रीजन बताती हूँ, क्योंकि वो अनरिलेटेड क्वेश्चन है, हमें फोकस करना है हर बात पर। अगर वो रिलेटेड क्वेश्चन है जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहे, दैट इज फाइन। अगर बिल्कुल ही अलग है, वो लोग बच्चों के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज क्विक डिसीजन बाय अ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ यू आर अनेबल टू गेट अ जॉब, भाई आप, ये जो समस्याएं है ना, सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, हर तरह की समस्याओं को मैंने इंक्लूड किया है। अब एक प्रॉब्लम है कि आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो आप क्या करेंगे? आप ट्यूशन लेना स्टार्ट कर देंगे घर में, आप घर में ही रिमेन एट होम, आप घर में ही रहेंगे और कुछ और जॉब देखेंगे, टेक सम अनदर जॉब, या आप कंटिन्यू अप्लाई करते रहेंगे जॉब के लिए। अपने ऑप्शंस लिखिए ऑडियंस, ABC क्विकली। शीला मैम ए डी, ओके, राइट आंसर दिखाइए पूजा मैम। सो राइट आंसर इज डी, एब्सोल्युटली। जिन्होंने डी दिया है वो पास हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम वेरी फास्टली, और ऑनेस्टली अपने स्कोर बताइएगा आप लोग, क्योंकि मैं आपको नंबरिंग देने वाली हूँ। एक और सिचुएशन है कि आप, एक स्टूडेंट है जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको पता चला है बच्चा मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? आप इग्नोर कर देंगे उस बच्चे को, आप उसे लेस मार्क्स दे देंगे एग्जाम में, आप उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, या आप बदला लेंगे, या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। सी, देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहे हैं। 3 क्वेश्चंस। ए, ओके, वेरी गुड सुमेधा मैम। ए मोस्टली आंसर आ रहे हैं। मैम आंसर दिखा दीजिए पूजा मैम। राइट आंसर है सुमेधा मैम। ओके, हमारा ए आंसर करेक्ट था, हम इग्नोर कर देंगे भाई। देखिए, टीचर्स को तो हर तरह के इमोशंस के साथ डील करना है, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा, हमारा मोटिव है उनको ज्ञान देना, उनको आगे लाइफ में सक्सेसफुल बनाना, तो वी हार्डली मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, इफ यू विश टू डेवलप सोशल वैल्यूज, आप बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज डेवलप करना चाहते हैं, तो आप इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शंस को चूज करेंगे? टेलिंग देम ग्रेट पीपल, आप लोगों, बड़े ग्रेडेड लोगों के बारे में उन्हें बता देंगे, आप उनमें डिसिप्लिन, सेंस ऑफ डिसिप्लिन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, आप आइडियली बिहेव करेंगे, या हम उन्हें गुड स्टोरी सुनाएंगे अच्छी अच्छी। सो डी आंसर आ रहा है। ओके, सी आंसर आया दीपिका मैम का, वेरी गुड दीपिका मैम। रेखा राज मैम का सी आंसर आया, वेरी गुड। आप दीपिका मैम क्वाइट गुड डिसीजन मेकर। या एब्सोल्युटली करेक्ट, बिहेविंग आइडली। जब तक हम आइडली बिहेव नहीं करेंगे, बातों से कुछ नहीं होने वाला, स्टोरी से कुछ नहीं होने वाला। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो अपने एक स्पेसिफिक डिजायर पॉइंट को उतरने के लिए चेन पुल करना चाह रहे हैं ट्रेन की, तो आप क्या करेंगे? फाइन, फिफ्थ क्वेश्चन है। आप दूसरे पैसेंजर की हेल्प से चेक करेंगे कि फ्रॉम डूइंग सो कि वो किस तरह से क्यों कर रहा है, क्या उसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे, आप उसको चेन पुल करने देंगे, या फिर आप गार्ड को जब ट्रेन रुक जाएगी तब जाके गार्ड को इन्फॉर्म करेंगे, या आप कुछ नहीं करेंगे, आप शांत बैठेंगे? क्विकली सोचिए आप क्या करेंगे। राइट योर ऑप्शंस, ABCD, quickly. A, Asha ma'am's correct. A, anybody else? A, Asha ma'am answer is A. Sumita ma'am is saying A, great. Okay, so we can see the right answer, Pooja ma'am. काफी लोग right answer दे रहे हैं. Rekha ma'am also said it. Yes, absolutely correct. Deepika ma'am also got the correct answer. बिल्कुल, हम पहले at least हम खुद इनिशिएटिव लेने से पहले बेटर है कि टीम वर्क भी आ जाए ना, यहाँ पे हमारा टीम वर्क भी आया. So we can see next. ओके, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपको लगा कि जहां पे आप काम कर रहे हैं वो प्रेजेंटली जिस काम में एंगेज है वो आपको यूजलेस लग रहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका कुछ बेनिफिट नहीं है, आपको कुछ गेन नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? आप जॉब छोड़ देंगे, आप ट्राई करेंगे उसी जॉब में इंटरेस्ट डेवलप करने की और उस काम को आप मोर सीरियसली करेंगे और एंजॉय लेके करेंगे, एंजॉय करके काम करेंगे, या आप अपने बॉस से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे प्रेजेंट टास्क हटा दें, या फिर आप आर्ग्यू करने लगेंगे अपने बॉस से, ऐसा काम क्यों दे देते हो मुझे? सो मेरे ख्याल से यहाँ आंसर बिल्कुल क्वाइट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है. वी टीचर्स हैव टू फेस दिस थिंग, सो आई थिंक इट्स क्रिस्टल क्लियर आंसर. पूजा मैम, यू कैन शो द आंसर बी. सभी लोग सही है यहाँ पर.
बी इज अ करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे प्रॉब्लम सॉल्वर ऑलरेडी इतने अच्छे हैं यहाँ पर। ओके, कम टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वन ऑफ आवर सीनियर ऑफिसर डज नॉट लाइक यू। अब मैंने ऑफिसर लिखा है, भाई वो कोई भी हो सकता है, आपके कुलीग, बॉस, प्रिंसिपल एंड ऑल, आपको पसंद नहीं करते जहां पे आप काम कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आप कैसे मैनेज करेंगे? बाय कंप्लेनिंग टू द हायर ऑफिसर, आप कंप्लेन कर देंगे उनसे भी बड़े ऑफिसर से, आप उनसे पर्सनली जाके बात करेंगे, या आप उस चीज को निग्लेक्ट करेंगे और अपने काम को केयरफुली करते रहेंगे, या आप रिजाइन दे देंगे उस जॉब से। ओके, आप प्राइवेटली उनसे बात करेंगे कि आप हमें क्यों पसंद नहीं करते हैं, बट जो पसंद नहीं करता उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे कैन गिव यू एनी एक्सक्यूजेस। सो I didn't get the right answer. Anybody else? I'm waiting for Deepika ma'am's answer. She always corrects it. Yes, C is correct. Because you know senior officers बहुत सारे reasons हो सकते हैं, jealous feeling भी हो सकते हैं, हम यहाँ पर principal चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर jealous feeling भी हो सकती है, leg pulling भी हो सकते हैं, कुछ भी reasons हो सकते हैं, तो हम personally बात करेंगे तो मुद्दा खिंचता ही जाएगा। It's better to हम चीजों को stretch करें, better कि हम आप उस चीज से अलग हटे और अपने काम पे ध्यान दें। Come to the next last question. लास्ट क्वेश्चन प्रीति मैम मेरी ओर से है, क्योंकि वो हमारी स्लाइड में नहीं है। मेरी ओर से क्वेश्चन ये है कि कितने लोग सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई है, दैट वी हैव बिकम द प्रॉब्लम सॉल्वर? Absolutely, absolutely. Let's see how many says yes. Let's see, interesting one. Yes, we have become problem solvers. Yes, sir. मुझे तो कुछ right, yes, if you are feeling that you are going to solve your problem, आप अपनी problem solve करने के लिए capable हो चुके हैं, please write yes in the chat box. Oh, Rekha ma'am is quite become a problem solver. Rekha ma'am तो problem solver हो गए. Sumita ma'am is also very good. Thank you so much, ma'am. Deepika ma'am also saying yes. Yes, Deepika ma'am, almost you gave all the correct answers. Sabha ma'am also saying yes. Yeah. Okay. So तब तक हम अपना last question भी complete कर लेते हैं. Okay, so we have 7. This is the last one question. Okay, so very fastly मैं इन तीनों slide को wind up करती हूँ with 1 or 2 minutes. Ma'am, you can go for that 2 and 3, 4 slides simultaneously. मैंने इसमें ये बताने की कोशिश की थी patience क्यों टीचर्स के लिए जरूरी है. मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए. पेशेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि पेशेंस हमें ये बताता है कि पेशेंस नॉट अबाउट वेटिंग द थिंग्स, हम उस वेटिंग पीरियड में किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, ये चीज हमारी सॉफ्ट स्किल के अंदर आती है. सो पेशेंस विद आवरसेल्व्स, नेक्स्ट स्लाइड मैम, एंड पेशेंस विद आवर स्टूडेंट्स. ठीक है, हमें अपने साथ भी पेशेंस दिखाना होता है, हमें अपने कोलिग्स के साथ भी पेशेंस दिखाना होता है, और हमें अपने जो ऑडियंस है या हमारे पेरेंट्स हैं उनके साथ भी हमें पेशेंस दिखाना होता है, और स्टूडेंट के साथ भी पेशेंस दिखाना होता है. आई प्रेफर कि मैं आपको सेपरेटली इन सब के एग्जांपल्स दूं, बट मैं ओवरऑल इन तीनों चीजों को वाइंड अप करना चाहूंगी एज वी हैव अ लैक ऑफ टाइम. क्यों और कैसे करना है, इसके लिए एक समराइजेशन है मेरे पास. देखिए, हम तीनों का एग्जाम्पल अलग ले सकते हैं. जब भी हम पेशेंस यूज करें ना, इट्स बेटर कि हम पहले समझे, प्रॉब्लम सिचुएशन को समझे. जैसे लाइव एग्जांपल मैं बिल्कुल ना एकदम 6 from 4 मेरे माइंड में आया तो बता सकती हूँ, और मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं कि टुडे आई हैव जॉइंड विद फोन. प्रीवियसली बिफोर 5 minutes आई जॉइंड विद माय लैपटॉप, समथिंग हैपेंड, सो आई टेक क्विक डिसीजन. मैंने बहुत सारे रास्ते निकाले, रेखा मैम से बात की, पूजा मैम से बात की, और पैनिक होने की बजाय मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं जिस चीज के ऊपर वेबिनार करने वाली हूँ मुझे पैनिक नहीं होना है, मुझे पेशेंस रखना है. तो बिना पैनिक में मैंने ऑप्शंस निकाले, बात की, और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. तो मैंने तो यहाँ एक चीज सीखी इस वेबिनार से, मुझे एक फायदा हुआ. मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ ज्यादातर, तो हमें पहले समझना है, काम होना है. और व्हाट आई फील कि हम जब भी परेशान पैनिक होना, आप देखिए, आप साइकोलॉजिकल है, हम बहुत फास्ट बोलने लग जाते हैं या हम बहुत गुस्से में बोलने लग जाते हैं. तो ये एक आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा जब आप थोड़ा सा स्लो बोले, तो आपका जो एग्रेशन है वो कम हो जाएगा. और आप ये सोचे, जब आप पैनिक हो रहे हैं या पेशेंस लूज कर रहे हैं, कि आप आगे की पिक्चर देखें कि अगर आपके पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, सो बेटर आप आगे देखें कि उसका हम अगर वेज निकालेंगे, रास्ते निकालेंगे, तो आगे हमारे पास और भी जो हमारा कंसीडर है, जो हमारा रास्ता है, वो क्लियर हो जाएगा. सेकेंडली, आप जिस समय गुस्सा होते हैं तो अपने शब्दों पे जरूर आप फोकस करें कि आप कैसे शब्द बोल जाते हैं. कभी कभी हम गुस्से में बोल जाते हैं जब पैनिक होते हैं. तो मेरा ये एक एडवाइस है कि एक बार आप कोशिश करिए, आप अपने बच्चों को डांट रहे हो ना, तो 1 मिनट के लिए ऑडियो रिकॉर्डर दबा दीजिए. उसके बाद जब अच्छे मूड में हो तो आप सुनिएगा. तो कभी कभी खुद को ना रिग्रेट होता है, ओ गॉड, हमने उन लोगों को कितना सुना दिया.
ये सिर्फ हमारे पेशेंस लूज करने की वजह से हो जाता है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा, टेक अ डीप ब्रीथ एंड गो अवे फ्रॉम देयर, आप वहां से निकल जाइए, बेस्ट सॉल्यूशन है। सो इन दिस वे वी कैन कंट्रोल आवर पेशेंस, व्हिच आई फील कि टीचर्स के लिए बहुत मस्ट है। आई होप कि आप लोगों के लिए पूरा फ्रूटफुल हुआ होगा, आपने एम्पैथी को जाना होगा, हम अपनी सिचुएशन को किस तरह टैकल करें, शायद इसके ऊपर आप बहुत अच्छी तरीके से आगे नए सेशन में काम कर पाएंगे। ओवर टू यू पूजा मैम। Yes, मैं yes. वैसे हम ऑडियंस से कुछ व्यूज ले लें, थोड़ा ऑडियंस से हम जान ले। मैं रियली रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कुछ ऑडियंस शेयर करें कि आपके सामने कुछ सिचुएशन आई हो जो हमारे कुछ पॉइंट्स आपकी मदद कर सकें। आशा मैम ने लिखा कि मिसअंडरस्टैंडिंग इज नॉट, यस, ओके, थैंक यू सुमिता मैम, as considered to be a wonderful session. I think fruitful रहा हो आपके लिए। Ma'am, just give me a minute. I would love to hear them. I'll just allow all of you to, you can unmute yourself and then you can surely speak up. We would really Yes, appreciate. absolutely. Yeah, you can unmute yourself and speak up. Yes, Sabha. Sabha ma'am. Sabha Sabha ma'am. Yes, ma'am. Good evening, everyone. I'm so sorry. Actually, I joined quite late. I missed out the update in the WhatsApp group, actually. So I could join late, It's but okay, you know, ma'am, the it's 5 minutes which I heard, 5 to 10 minutes, it was so amazing. And I think it just all happened at the right time. But as a teacher, I mean, I don't know what all ma'am has touched. I'm so sorry for that. But as a teacher, you know, I feel I'm very patient with my students in school. But what happens is maybe that patience level goes really down when it comes to our own children. So my question would be that, you know, how, you know, to strike a balance. Sometimes, you know, with others children we are very patient, and with colleagues and with everyone else probably that patience level is very high, but when it comes to our own children, probably that goes to, you know, 0 and 1 and minus, I guess. So Absolutely agree with that you. is, yes. Absolutely agree with you, Sabha मैम। और मैं इस चीज के लिए बिल्कुल आपको एक सॉल्यूशन देना चाहूंगी, एंड आई हैव अ सेम फीलिंग, आई रियली एग्री विद यू। मैं ये सोचती हूँ कि या हम लोग कभी कभी क्लास में भी पेशेंस लूज करते हैं, बट वी रियलाइज दैट वी आर ऑन द फॉर्मल प्लेस। बट यहाँ हमें पता है कि हाँ, हम अपने बच्चों के ऊपर काफी वर्ड यूज कर लेते हैं, कभी कभी हम फ्लो में बहुत कुछ बोल जाते हैं। सो व्हाट आई फील ना कि ये हमारे यही पॉइंट काम आ जाएगा, यहाँ भी हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना, हमें बच्चों को, अपने बच्चों या स्कूल के ब्लेम, वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम ही है। तो क्योंकि हम ही अदरवाइज ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमारे बच्चे हैं, ये तो सब सुन लेंगे, बट कहीं ना कहीं जो अंदर वो फील कर रहे होते हैं ना, वो एट अ टाइम नहीं बोल पाते हैं, वो बाद में जिस चीज से सफर करते हैं, देन वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमने गुस्सा किया है, अगर हमने टेम्पर लूज किया है, तो हम उसे फिर थोड़ा सा बैलेंस भी करें, हम उनके पास जाए, हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम समझाएं कि मे बी बेटा सॉरी फॉर दैट। ये बहुत जरूरी है कि वो उस चीज से बैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि हम क्लास में बच्चों के पास सीट पे बैठ के उनको इस तरह से हम लोग ना प्यार नहीं कर सकते, बट अपने बच्चों को समझा सकते हैं, बेटा यू अंडरस्टैंड ना, थोड़ा सा शायद बिजी शेड्यूल और काम और आपके परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा निकल गया, बट आई रियली लव यू अ लॉट। और सेकंड चीज, हम कैसे रियलाइज करें, हम अपनी रिकॉर्ड करके देखें, हम Yeah, I अपने like जो that बोल tip. जाते हैं ना, वो हमें जरूर मोटिवेट करेगा। Innovative, but Sabha ma'am, start करने के लिए Thank you so much. tempo many a times. But what I actually did a few days ago, I started playing FM. Fine, the music. It is Oh, okay. a perfect remedy. Whenever you are losing temper, na, start the music. Things vanished. Or automatically song हो जाते हैं. I did it. I had implemented on me. You can try. Start music. Thank you, Whatever ma'am. you like, Thank you. whatever Thank song you like, start playing. You'll forget. Thank you. You'll forget your anger. I am Yes. telling you. It Thank you so work much. wonders. It works wonders. So you can try. Best. Thank you so much. Thank you all of you, ma'am. Thank you, ma'am. Both the teachers, thank you. So thank you so much, dear audience. मेरे ख्याल से इस सारे सेशन का एक कॉमन टेक अवे है, दैट इज मे बी व्हाटएवर कम्स, दैट इज दैट ब्रेन आर यू नो वी नीड टू ट्रेन आवर ब्रेन्स। अनलेस एंड अनटिल हम वो काम नहीं करते, जब तक हम अपने ब्रेन्स को ट्रेन नहीं करते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डिसीजन मेकिंग हो, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन हो, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, किसी के साथ एम्पैथिक होना हो, कुछ अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करना हो, कोई भी बात ले लो, जब तक हम अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करते खुद से,
tab tak we cannot move a step ahead. That is something very important. That is my takeaway from this session. I hope आप सबके लिए भी कुछ ना कुछ takeaway जरूर रहा होगा. So thank you so much, dear audience. We are really obliged कि आप सबने इतना time spare किया और आप सब हमारे साथ end तक जुड़े रहे. I have already shared the certificate link into the chat box. So I hope all of you have received it. Deepika ma'am, thank you so much. We have read your message that you're saying that the session was quite useful and motivated. So this is all just because of our resource people, Rekha ma'am and Preeti ma'am, who from their, heart, core of hearts, they have just showed every glimpse of improving ourselves, maybe as an educator, maybe as a professional. So I'm very thankful on the behalf of AIF platform. I'm very thankful to our resource person, both of you. Thank you so much कि आप दोनों ने इतना ज़्यादा हमें enlighten किया. Thank you so much, dear audience. Our pleasure, ma'am. Thank you, Rekha ma'am. Thank you so much. So Thank here you so we much. are signing off for today, but do join us for tomorrow's session, which is really gonna to be something more, adding on to our professional skill. Let's see what is there in it. We'll be connecting with you tomorrow evening and we'll be forwarding the flyer and all the details very shortly. Thank you so much, dear audience. Good evening. Once again, thanks and all. Thank you so much,